لوگ پوچھتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں یا پھر ہم ایسے کرتے یہ والا جو احتجاج چلا ہے نا، اس میں سب کا پروگرام بات اب اللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قائد اعظم پریس کلب نہیں آیا بلکہ میں اپنے گھر آیا۔ یہ قائد اعظم پریس کلب آپ کا نہیں، باول نگر کا نہیں، یہ لاہور کا ہے، یہ ناصر مدنی کا ہے، اور آپ باول نگر کے جتنے صحافی ہیں ان کے ساتھ میرا رشتہ دنیا والا نہیں ہے اور نہ کوئی شخصیات والا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں رات کے 1 بجے آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے فوراً ویلکم کہتے ہیں، تو آپ بھی کہیں کسی ٹائم بھی اپنے شہر کے کام لاہور میں آئیں تو 24 گھنٹے دل دے دروازے بھی کھلے نے، سوسائٹی کے دروازے بھی کھلے نے، گھر دے دروازے بھی کھلے۔ اور یہ دے لفظ جڑے ہوندے نے چنے ہوندے نے، کچھ لفظ ہوندے نے صرف وہ بنائے ہوندے نے، اور ہر بندہ پنجابی جی کہندے نے بھیڑ چالو بولی جاندا، لوکی بولی جاندے، مگر وہ دے مطلب دا وہ دے سیاق و سباق دا کم لوگوں کو پتہ ہوندا۔ تو اچھے لوگ وہ ہوندے نے جو اپنے الفاظ نو اپنی پہچان سمجھدے کہ میں منہ ہے گل کڈی ہے، پنجابی جی کہندے نے گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالن پور۔ تو میں 1 گھنٹہ جو لیٹ ہوا نا، رستے میں دیوان احمد صاحب مجھے مل گئے، پاک پتن کے گدی نشین، تو پھر انہوں نے فون کیا، پھر پل سے واپس گئے، ہم ادھر کھڑے ہوئے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ گیا ادھر، تو وہ ادھر آئے ہوئے تھے باول نگر۔ تو یہاں سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا چوہری طارق صاحب اور ان کے سارے رفقا سے کہ قومیں بنتی ہیں اتحاد سے۔ آج تک پاکستان میں اسلامی حکومت کیوں نہیں آئی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم مولوی حضرات کٹھے نہیں، اور 95% مسائل پہ تمام مسالک کا اتفاق ہے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، تمام کا 95%۔ ہمارا اسلام اتنا نہیں گیا گزریا کہ ہم سارا اختلاف ہی لے پھرتے، نہیں، 5% پہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ 1500 سال پہلے اسلام چلا ہے، تو سینہ بسینہ چلتا آیا ہے۔ آج تو ڈیجیٹل دور ہے کہ جس سے وہ ہوتی ہے بات وہ لوگ سرچ کرتے گوگل سے نکال لیتے، تو وہ چلتی 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 بات جب باول نگر پہنچتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہو جاتی ہے نا۔ تو آئمہ کا آپس میں صرف فقہ میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث میں اختلاف نہیں۔ جہاں واضح قرآن حدیث کی نص آ جائے سارے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ بات کرنے کا کیا مقصد؟ یہ تو مذہبی کنونشن ہی نہیں، مگر میں اپنے شعبے کے ریلیٹڈ میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ ہمیں نقصان کتنا ہوا کہ ہم 5% پہ لگے رہے اور 95% پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، اور لوگ آج جدا جدا ہیں، تو اس کا نقصان شیطان کو فائدہ ہوا اور اسلام والوں کو نقصان ہوا۔ کیسے کہ اب دنیا نے NGOs ساری مساجد سے نکال کے اپنی اپنی بنا لی۔ پہلے ہر چیز مسجد مرکز ہوا کرتی تھی، NGOs بھی مسجد سے چلتی تھی، اسلام بھی مسجد سے چلتا تھا، فتویٰ بھی مسجد سے چلتا تھا، عدالت بھی مسجد سے چلتی تھی، ٹریننگ بھی مسجد سے چلتی تھی، حتیٰ کہ جیل کا قیدی بھی مسجد میں باندھا جاتا تھا، اس کی اصلاح کی جاتی تھی، تو مسجد مرکز تھا۔ تو میرے صحافی بھائیوں، آج باول نگر کے اس قائد اعظم پریس کلب میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم نے نقصان اٹھایا، آپ نہ اٹھائیں۔ سارے باول نگر کے جتنے صحافی ہیں ان کی قلم میں سے کبھی یہ بو نہ آئے کہ ادھر 2 ہیں۔ صحافی کا جب مفاد ہو، آپ کی آنے والی نسل، اگر آپ صحافی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آنے والی نسل کو کچھ دکھائیں۔ آپ دیکھیں علماء کرام کی مسجدیں شیش محل کا منظر پیش کرتی ہیں، مگر مولوی کا بیٹا مولوی بننے سے کیوں کتراتا ہے کہ اس کا اپنا مکان مسجد کے ایک واش روم کے اوپر ایک کمرہ ہوتا ہے اور اس میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور سوسائٹی میں اس کے بچے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے بابا نے مسجد کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بچے مولوی بننے سے کتراتے ہیں۔ تو آپ نے تو گزار لی ہے، تو اگر آپ اپنی نیو نسل کو، نیو جنریشن کو، یعنی کہنے 16 پرو میکس ماڈل کو
मोबाइल अगर इस न्यू जनरेशन को अगर आप सियाफी देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप उनको एक बेहतरीन सोसाइटी दें। आप लोगों के काम करते हैं जी, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, उसके पंजाबी कहते जीवे थले नेरा ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ सारे घोड़े अपनी सोसाइटी वास्ते दौड़ाओ। लाहौर में बेहतरीन जगह पे सियाफी कॉलोनी, आज 15-20 लाख रुपए मरला जगह है वहाँ। तो आप बावल नगर में इतनी जनाब आला, मेरे पंजाब से सबसे बड़ा ज़िला ही मुझे बावल नगर लगता है, जिसकी एक तहसील 50-50 किलोमीटर। और बावल नगर का जो DPO वो भी बड़ा ताकतवर होता है, DCO भी बड़ा ताकतवर होता है, और जो भी अफसर आता है वो कहता है ये बड़ा साज ज़िला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बावल नगर आपके पास आना जाना रहता है, तो कुछ 4-5 सालों के विच कुछ पंजाबी जी कहते हैं करके खा लो, कोई अपनी कौम वास्ते भी कर लो। तो इस हुकूमत को या अगली हुकूमत को, अगर एक हुकूमत 1-2 साल कट जाए तो ये को अगली आ जाए तो वो मैं तुहाडे नाल हाँ। जेड़े प्लेटफार्म ते जाओगे लाहौर दफ्तर च, मैदान च, पार्क च, रोड ते, तुहाडे वास्ते मैं दौड़ो अपने तेल ते आवां करा। मैं चाहता हूँ मेरा भी हिस्सा पै ताकि मेरे भतीजे अगे सेफ होन। तुसी अपनी कॉलोनी वास्ते आवाज़ उठाओ, बाकियां लई ते सब लई आवाज़ उठांदे हो। तो लोकी ते तुहानू जिन्ने लोग समझते हैं वो कहते जी वो सियाफी ने ओदी सैड लई, ओदी सैड लई। मैं ना हैरान, लोकी तुहानू कह दिंदे ने ओदी सैड लई, वो तुसी अपने बच्चों की सैड नहीं लै सकदे। अपनी फैमिली का सोचो, अपनी औलाद का सोचो। ये यहाँ सियाफी कॉलोनी मंजूर कराएं, और जो जब कॉलोनी आपकी मंजूर हो जाएगी तो समझें आपका नाम पूरे पाकिस्तान के सियाफियों में शुमार होगा कि इस कौम ने अपना हक ले लिया है। तो ये अब आपकी जो उम्र चल रही है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान में 50 से ऊपर बंदे बोनस हैं, तो तुसी कुछ कर जाओ, इधर प्रोग्राम बढ़ जाना। और मैं डॉक्टर साहब ने भी कहांगा सबनू, खास करके यहाँ एक बुजुर्ग बैठे, क्या नाम है आपका? रफीक रहमानी साहब। आपके नाम की निस्बत भी रहमान से, आपके जो सफेदी के बाल हैं, आपको चाहिए कि इन सब को लेके कहो मेरे चिट्टियां दी लाज रखो, सारे काम छड्डो ते इधर तुरो। ते नहीं तो तुहाडे नाल वही होना है जिवें नवाज शरीफ की सीट उसदी बेटी कोल आ गई है, तुहाडी सीट भी किसी होर कोल चली जाएगी। सारे अपने चन्न मक्खन मलाई हो। प्रेस क्लब की जिम्मेदारियां होती हैं कि कौम का भी सोचे, अपनी औलाद का भी सोचे, शहर का भी सोचे। शहर की ज़मीन अगर किसी के पास जाने लगे फिर भी शहर का सोचना है। अगर आपका शहर दूसरे ज़िले से फंड कम ले रहा तो अपने शहर का सोचे, अपने ज़िले का सोचे, इसकी आवाज़ उठाएं, इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर फंड कम आ रहा है इसमें आपके MPA MNA का कसूर है। आप अपने MPA MNA के बारे लिखें कि सारा उस ज़िले को इतना फंड गया, साढ़ा नक वगदा है। वो पंजाबी जी कह रहे हो ना, बोलो तो सही है। आप MPA MNA को कहें या पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ नाम की है, यहाँ जमहूरियत नहीं है, आमरीत चंद खानदानों की है। उनके पास तो MPA MNA बैठ नहीं सकते। जितना मैं इनको जानता हूँ कोई हो सकता कम जानते हो। जिन लीडरों से MPA MNA को टाइम लेना पड़े कि हमें जनाब 5-10 मिनट दे दें और हम हाथ पास के ऐसे खड़े हो जाएं, तो वहाँ क्या काम की तवक्को होगी? काम वो होता है उस MPA MNA के डेरे से मुल्क का वजीर आप चल के आके कि तू 10 भाई की चाहना एनू कहते ने मैंबर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ताकत बने अपने शहर की, आप अपने बच्चों के तलीम के लिए, सेहत के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप दौरा करें तो कितने उधर जनाब आला होंगे। तो ये जितने वेंटिलेटर है मैंने देखा है, कहीं एक होता, कहीं 2 होता, कहीं 3, इतने एक भी नहीं। लो आदे खोदिया पहाड़ निकलिया चूहा, 5 तहसीलां ने इस डिस्ट्रिक्ट दियां ते एक वेंटिलेटर नहीं। और मैं शेम कारियो कहता हूँ यहाँ सुथरा पंजाब है, साढ़े डॉक्टर बड़े अंतरे ने। असी बीमार होइए इनू साहिवाल लै जाओ, वो बीमार हो इनू लाहौर लै जाओ, असी लाहौर रहने सानू आदे नू घर लै जाओ। मगर जदों इस MPA MNA सियासतदान लीडर बीमार होंदे आंदे नू लंदन लै जाओ, इनू अमरीका लै जाओ। तो मैं हुकूमत से भी यहाँ प्रेस क्लब आया हूँ, ये कायदे आज़म प्रेस क्लब, यहाँ सबसे पहले पंजाब हुकूमत और मैं वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस ज़िले की तहसील 45 किलोमीटर पे हो और उसके डिस्ट्रिक्ट में, शहर में
ना जी सबसे बड़ी होती है THK अस्पताल जिले का, उसमें अगर वेंटिलेटर एक ना हो तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। कहाँ है सुथरा पंजाब और सेहतमंद पंजाब? मैं इनसे पूछता हूँ कि हम तो फिर पूछेंगे कि यहाँ बावल नगर में वेंटिलेटर क्यों नहीं बचाया, लोग पूछते हैं और हम भी कहते हैं, या फिर हम ऐसे करते ये वाला जो एहतजाज चला है ना, इसने सबका प्रोग्राम बांट। अब तो हम बोल भी नहीं सकते, रात हम गिदड़ों की आवाजें ऊ सुनते हैं, सुबह लोगों की आवाजें ऊ सुनते हैं। मैं हैरान हाँ, उंज वैसे लॉजिक ठीक है, जो बंदे नूं पीड़ हुंदी है बंदा करदा ऊ ही है। तो मैं आप सबको कहूँगा, जितने ये हमारे चंद हैं, मैं बावल नगर आया हूँ, बावल नगर मेरा अपना ज़िला है, अपना शहर है, डॉक्टर तारक साहब और ये सारे सियाफी मेरे, मैं जब भी आया हूँ इनके पास ही आया हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे पाकिस्तान से कि अल्लाह करे आपका सेहतमंद पंजाब बन जाए। तो नज़र तो नहीं आता मगर आना शुरू हो जाए तो खाली ये रक्शे, ये गाड़ियों वाले, ये मोबाइल हॉस्पिटल देने से काम नहीं बनता। गड्डियाँ तो हमेशा रस्ते पंचर हो जाते, मरीज राज मर जाएंगे। गड्डी ते टहरा ते आना ना मोबाइल अस्पताल। तो आप जदीद दौर दुनिया चंद ते पहुँच गई है, तो असी अजे मोबाइल अस्पताल तक पहुँचे। तुहानूं चाहिए बावल नगर दे, मैं बिहाड़ी गया, उत्थे भी एक वेंटिलेटर नहीं, एक जुगाड़ ला के रखा होया। वेंटिलेटर पे दुनिया जिंदा। हमारे लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल कितना बड़ा है, 8 वेंटिलेटर थे। मैंने उसको पूछा भी आप फिर इसको डालते कि किस बंदे को इस पे डालते हो वेंटिलेटर पे? कहता जरा 30 तो थले होवे ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਂ डालिया तू जा। ये हालात है हमारे मुल्क की सेहत के। तो मैं अपील करता हूँ, पहले तो बावल नगर ये कायदे-ए-आज़म प्रेस क्लब के ज़रिए वेंटिलेटर 2-4 इनको देने चाहिए, ताकि यहाँ ही बच्चे नाजीर बच्चे, जवान, बूढ़े सांस लेने के बजाय वो साहिवाल जाते हैं, वहाँ इनको वेंटिलेटर सांस मिले, यहाँ ही इनको जनाब आला सहूलतें में दी जाएँ। दूसरे नंबर पे सियाफी कॉलोनी का ऐलान किया जाए। और तीसरा, इस शहर के सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तलीम का होता है। तो तलीम चंद लोगों के पास मैंने देखा अच्छी कमरे, अच्छे फर्नीचर रह गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि चलो स्कूलों जो बच्चों को दुध तो नहीं पहुँचा, तो कम का कम बच्चों को स्कॉलरशिप जी है वो प्राइवेट स्कूलों भी दी जा रही, शहरों भी दी जा रही है। तो खसूसी तौर पर आप जिस तरह टीचरों के लिए, स्कूलों के लिए ऐलान आप कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि अगर सियाफी सच ना लिखे तो आप तक कैसे पहुँचे? सारे तो चमचागिर बैठे ने। तो ये सियाफी वाहद है जो दुश्मनी लेके हुकूमत तक आप रियासत का काम करता है। हालांकि ये काम एजेंसियों का है, वो लिख के भेजें, मगर ये रियासत का काम सियाफी करते हैं। सियाफी जो देखता है वो लिखता है, उसकी कलम लिखती है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से और अपने सियाफी भाइयों से अपील करता हूँ, हुकूमत से अपना हक लें और अपने मफाद के लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्ल को सियाफी देखने के लिए। सियाफी लिखना छोड़ देगा तो बस फिर काम गया। तो मेरे भाइयों, हर काम फेसबुक पे नहीं होता। फेसबुक पे सिर्फ आपको लाइक मिलता है, शेयर मिलता है, फॉलो मिलता है, बाकी काम नहीं होता। तो स्क्रॉल करके लोग गुजर जाते हैं, अफसर तो देखते ही नहीं है। तो आप अपना सारा प्रेस क्लब की ताकत, सबसे पहले आपका महाना इजलास इस बात पे होना चाहिए कि हमने ये क्या प्रोग्रेस की है इस काम के लिए। जब आप 12 दफ़ा साल में उनके पास जाएंगे ना, तो कहते तू कुंडा खड़काई जा, कदी तो मौला पूछेगा ही ना। तो तुसी बस लगे रहो, सरकार कदी तो तुहाडी गल ते लबैक कहेगी। मैं इन्हीं बातों पे इत्तफाक करता हूँ कि आप अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाएं, इसकी मेंबरशिप बढ़ाएं। और मैं एक बात याद कराऊँ, नबियों वाली तबलीग जो है ना, वो लोगों के पास जाके करने के नाम है। तो सियाफी भी जो कामयाब अपने आप को देखना चाहता, आप अपने दोस्तों के घर जाया करें, खुशी गमी में शरीक होया करें, उसके पास जाए जो आपका गरीब सियाफी है, उसके कोट का ख्याल रखें, उसके सूट का ख्याल रखें, उसके बूट का ख्याल रखें। ये है आपका काम करने वाला। जब आप अपने दाएं बाएं नहीं देख सकते तो इतों की गल चुक के पूरे पाकिस्तान को विखाने का की फायदा है? दीवे थले नेरा होया तो कुछ नहीं बनना। लिहाजा आप अपने दाएं बाएं की खबर रखना शुरू करें। करो मेहरबानी तुम अगले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान का अर्श बनी।